Hey everyone, this is Karan Vaswani, and today I am going to cover a very important topic from organic chemistry, that is polymer, in just 15 minutes. So please watch this video till end. And I am going to start. So the things which we are going to cover from this polymer chapters are sources of polymers, okay, from where they are being obtained to us. Either it is natural, या फिर वो सेमी सिंथेटिक है, या वो सिंथेटिक टाइप ऑफ पॉलीमर है. ओके. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस पॉलीमर. क्या वो लीनियर स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, या क्रॉस लिंक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है. थर्ड थिंग हम पढ़ेंगे मोड ऑफ पॉलीमर्स. क्या वो एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है. एंड लास्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इज मॉलिक्यूलर फोर्सेस. किस टाइप का फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स है. ओके. इलास्टोमर्स, फाइबर्स, thermoplastic and thermostatic type of molecular force. Okay, so we are going to start. The first thing which we'll learn is sources of polymer. Sources of this polymers. और पहली चीज हम पढ़ेंगे नेचुरल टाइप ऑफ पॉलीमर्स. नेचुरल मीन्स जो भी चीज हमें नेचर से मिले और जो भी पॉलीमर हमें नेचर से मिले. फॉर एग्जाम्पल फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, सो दिस टाइप ऑफ polymers are known as natural polymers, and some examples are starch, resin, cellulose and protein, etc. Okay, these are the types of natural polymer. Second thing is semi synthetic type of polymer. Semi synthetic means some of them are natural and some of them is prepared in laboratory. Okay, so they are derived, or you can say derivatives of natural polymer. Derivative of natural polymer means they are derived from nature but they are processed in lab. Okay, some of the examples are cellulose acetate and cellulose nitrate. These are the type of semi synthetic polymer. Third thing is synthetic type of polymer. Synthetic type of polymer means they are 100% prepared in laboratory. Okay, or you can say man made. Some of these examples are polythene, Buna S, and nylon 66. Okay, nylon 66. Now the next thing which we are going to learn is structures of this polymers. Structure of this polymers. Either it is linear type of structure या वो linear है. Linear means long and straight chains. Okay, direct chains में वो structures होंगे उस polymers के. Example है उसके HDP. HDP means high density polythene and polyvinyl chloride PVC pipes. Okay. Next is branched type of polymer. Branched means somewhat branching होगी उसमें. Okay. Linear chains having branches. Okay. These are the branches of polymers. Example क्या है? Low density polythene. Example क्या है? Low density polythene. थर्ड हम पढ़ेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. क्रॉस लिंक मीन्स उसमें ब्रांचिंग होगी लीनियर चेन्स के बीच में. ब्रांचेस बिटवीन लीनियर चेन. Example of this cross-linked polymer are bakelite and melamine type of polymers. Okay. Next thing which we are going to learn is mode of polymerization. Next is mode of polymerization. Mode of polymerization. First is addition type of polymerization. Okay. In addition polymers, they are formed without elimination of substance having smaller mass. Okay. जब भी ये पॉलीमर एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं तो उसमें रिमूवल ऑफ स्मॉलर मास नहीं होता. रिमूवल ऑफ स्मॉलर मास मीन्स रिमूवल ऑफ H2O और यू कैन से OH. ओके, इन दो चीज़ों का रिमूवल नहीं होता. इसे कहते हैं एडिशन. इसमें डायरेक्ट एडिशन टाइप ऑफ होता है. सेकेंड चीज़ हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमर्स जिसमें क्या होता है फॉर्म्ड विथ एलिमिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस स्मॉलर मास हैविंग सब्सटेंसेस लाइक H2O एक्सेट्रा. ओके, मीन्स जब भी दो पॉलीमर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे तो उसमें क्या होगा रिमूवल ऑफ H2O माइनस H2O होगा उस रिएक्शन में. ओके, उसे कहेंगे हम कंडेंसेशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन. ओके, नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमर्स फर्स्ट एडिशन पॉलीमर्स है होमोपॉलीमर. ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर इज homopolymer. In homopolymer the polymer having same type of monomers. Okay, जब भी हम लोग एक पॉलीमर बनाएंगे लेकिन जो उसके सब यूनिट्स होंगे या आप कहे
उसके मोनोमर्स होंगे वो दोनों मोनोमर्स सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी, पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, PAN मीन्स पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, एंड लास्ट इज टेफ्लॉन। एक एग्जाम्पल मैं लूंगा पॉलीथीन का। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथीन इज दिस इज CH2 double bond CH2, this is ethene molecule, and after polymerization the n number of molecules of this ethene will be taken and structure will be CH2 single bond CH2, this is n number of molecules, this is the structure of polythene। ओके, सो मोनोमर्स इसमें सेम रहे लेकिन बहुत बड़ी चेन बना दी तो उसे हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। ओके, next thing we are going to learn is copolymers. In copolymers the polymers have different type of monomers, means उसके monomer differ हो जाएंगे। example क्या है, buna S and buna N। okay, copolymers are also known as elastomer, okay, whereas homopolymers are also known as plastomers। okay, plastomers means you can connect this name with the name of polythene। okay, this is polythene, you can connect the name of plastomer from this polythene। now next topic which we are going to learn is condensation polymers। पहले हमने देखा कि एडिशन पॉलीमर्स क्या होता है, अब हम देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होता है। ओके, टाइप्स क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर्स के, पॉलीअमाइड, नेक्स्ट है पॉलीएस्टर और थर्ड है फॉर्माल्डिहाइड। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। एग्जांपल्स क्या है पॉलीअमाइड टाइप के, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। ओके, ये है टाइप पॉलीअमाइड क्लास के। एंड द टाइप ऑफ पॉलीएस्टर पॉलीमर इज डेक्रोन। ओके, नेक्स्ट इज formaldehyde and the type of formaldehyde polymer is PF resin, that is phenol formaldehyde resin, or you can say MF melanin formaldehyde resin। ये क्या है, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। और पॉलीअमाइड एंड पॉलीएस्टर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है फाइबर्स, इसको बोला जाता है फाइबर्स, जबकि फॉर्माल्डिहाइड टाइप ऑफ पॉलीमर को बोला जाता है थर्मोसेटिंग। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर रबर्स। अब हम रबर्स के बारे में जानेंगे। जनरली दो टाइप के रबर होते हैं, फर्स्ट है सिंथेटिक रबर और नेक्स्ट है नेचुरल रबर। सिंथेटिक रबर आप नाम से ही पहचान सकते हैं कि सिंथेटिक मीन्स जो कि लैब में बनाए गए हो। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स आर क्लोरोप्रीन, उसके सब यूनिट्स क्या होते हैं, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। स्ट्रक्चर बना दूंगा मैं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आएगा क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड CH, फिर से डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन और यू कैन से क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट है टाइप क्या है सिंथेटिक का, नियोप्रीन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, नियोप्रीन इज ऑल्सो नोन एज पॉलीक्लोरोप्रीन, this is the polymer of chloroprene molecule। okay, this is the chloroprene and polymer of this is known as neoprene। examples क्या है, buna S और buna N, ये क्या है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक रबर्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रबर। क्या है एग्जांपल्स नेचुरल रबर के, आइसोप्रीन, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन इज 2-methyl-1,3-butadiene। I will draw it, this is CH2 double bond C CH3 single bond CH double bond CH2। the structure of isoprene and chloroprene is almost same, but there is only difference of this methyl group। okay, as you can see this is the structure of 2-methyl-1,3-butadiene or you can say isoprene, and polymer of this is cis polyisoprene। okay, polymer of isoprene। so ये क्या थे टाइप्स ऑफ नेचुरल रबर। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। सो द हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर विथ सल्फर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रबर। ओके, जो नेचुरल रबर होते हैं वो जनरली बहुत से वीक होते हैं,
लेकिन अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, लैब में उसमें सल्फर की क्रॉस लिंकिंग चढ़ा देंगे। जैसे ही हम सल्फर की क्रॉस लिंकिंग चढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, रबर गेट्स स्टिफन्ड। स्टिफन्ड मीन्स हार्ड हो जाएगा रबर। फिर हम उसका यूज़ हर जगह पे अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, सो ये है यूज़ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे यूसेस ऑफ पॉलीमर्स, कि इन पॉलीमर्स का हमें यूज़ क्या है। ओके, जो भी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही तो हमारे पॉलीमर्स होते हैं, और वो पॉलीमर्स किस किस से बनते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज यूज्ड इन नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। नॉन स्टिक पैन और नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 कहाँ यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड ब्रश ब्रिसल्स। ओके, जो हम ब्रश करते हैं उसमें ये ब्रिसल्स में ये नाइलॉन 66 का यूज़ किया जाता है। थर्ड क्या है, नाइलॉन 6। नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6 दोनों अलग है। ओके, नाइलॉन 6 कहाँ यूज़ होता है, टायर्स, कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स वाली इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे रोप्स बनते हो, टायर्स बनते हो, क्योंकि हमें वहाँ पे फाइबर्स का यूज़ करना होता है और वो फाइबर वेट लिफ्टिंग या वेट कैरी करने में हेल्प करता है। ओके, फोर्थ हम देखेंगे मेलामाइन। मेलामाइन आर यूज्ड एज अनब्रेकेबल क्रॉकरीज। जो भी अनब्रेकेबल क्रॉकरीज होती है और जो कि बहुत महंगी होती है, वो महंगी इसलिए होती है क्योंकि वो अनब्रेकेबल होती है और मेलामाइन से बनी जाती है, क्योंकि मेलामाइन से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बेकेलाइट। बेकेलाइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस, कॉम्स। ओके, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में भी यूज होता है और कॉम्स में भी यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीवीसी। पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की पाइप्स आपने एडवर्टाइज में भी सुना होगा, वाटर पाइप्स, रेन कोट्स एंड अम्ब्रेला में यूज होता है ये पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड लास्ट है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ये पॉलीमर कहाँ यूज होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्लोन और एक्रिलान। इसके दूसरे दूसरे नाम है ऑर्लोन और एक्रिलान, और यूज कहाँ होता है, वुलन क्लोथ्स में। वुलन क्लोथ्स की इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स विद देयर मोनोमर्स। मीन्स जो हमने पीछे पॉलीमर्स देखे थे उन सब के मोनोमर्स मैंने एक पेज पे लिख रखे हैं ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प हो। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि इस पॉलीमर का मोनोमर बता दीजिए। सो फर्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन। नेक्स्ट है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड द मोनोमर फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड इज विनाइल क्लोराइड। Okay, next is nylon 66. Nylon 66 is a type of copolymer. Copolymer means nylon 66 के दो different monomers होंगे, जैसे कि hexamethylene diamine and adipic acid। ये क्या है, monomers of nylon 66। नाइलॉन 6 क्या है, एक होमोपॉलीमर है, मीन्स कैप्रोलैक्टम से ही बना हुआ है, उसी के पॉलीमराइजेशन से नाइलॉन 6 बनता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट। बेकेलाइट के मोनोमर्स हैं फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। बूना एस के मोनोमर्स है 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। ये भी एक कोपॉलीमर है। नेक्स्ट है ब्यूना एन। ब्यूना एन है और ये ब्यूना एस है। ओके, ब्यूना एन के मोनोमर्स क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन का मोनोमर है इथीन। Next है polyacrylonitrile. The monomer for polyacrylonitrile is acrylonitrile. Okay. Next is melamine. Melamine has the monomers melamine and formaldehyde. They are also known as MF resin. Next is pteryline or dacron. Another name of pteryline is dacron, and the monomers for dacron is ethylene glycol and terphthallic acid. This is also a copolymer. The last thing which we are going to learn is biodegradable polymer. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मीन्स जो कि नेचर उसे डिग्रेड भी कर दे। ओके, क्या है टाइप्स उसके, फर्स्ट है पीएचबीवी। फुल फॉर्म ऑफ पीएचबीवी इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। क्या है पॉलीमर, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ओके, ये है फुल फॉर्म ऑफ पीएचबीवी। कोपॉलीमर ऑफ
3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सी-पेंटेनोइक एसिड। इसके मोनोमर्स क्या है? 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सी-पेंटेनोइक एसिड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पीएचबीवी के स्ट्रक्चर्स पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है नाइलॉन टू नाइलॉन 6। ये नाइलॉन 6 नहीं है, ना ही ये नाइलॉन 6 है, ये है नाइलॉन टू नाइलॉन 6। कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन इज NH2CH2COOH। ओके, ये क्या है? एक अमाइनो एसिड है। अनदर मोनोमर ऑफ नाइलॉन टू नाइलॉन 6 इज अमाइनो कैप्रोइक एसिड। स्ट्रक्चर क्या है अमाइनो कैप्रोइक एसिड का? NH2CH2 5COOH। ओके, सो ये हमने पढ़े दो टाइप्स के बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ओके, so hope you have liked this video, and if you really loved this video, so share it with your friends and keep watching my channel. Thank you.